Good morning, students. Once again, a very hopeful, cheerful morning. So let's start this beautiful morning by our class. Yesterday, till the form of set means the set builder form and the roster form. That topic we have covered. Now we start next topics. So we let's start. First, we start about some notations because these notations are very necessary for this set theory, means for the chapter of set and the other chapters and other many chapters in 11th class and 12th class. Okay, because till 10 the students are not familiar with them. So for example, for the set of natural number, we symbolize it by capital N. Suppose x is belong to n, means x may be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, all the natural numbers. Second, for the set of integers, we denote by capital Z, and you know very well integer, these are the simple terms, so we don't waste time about on this. For next, for the set of all positive integers, we write Z plus. All positive, here all positive, and second one positive and negative both. Now next, for the set of all rational numbers, we denote it by capital Q, that is capital Q. And rational number you know very well, otherwise I will explain you afterward. Now for the set of positive rational number, we denote it by Q plus. Now for the set of all real numbers, this is very simple. Many times I write R, means set of real numbers, and this information is real numbers means the combination of rational and irrational numbers are called real numbers. Next, for the set of all positive real numbers, we write R plus. And for the set of all complex numbers means imaginary numbers. This chapter is also in class 11. When you go after irrational number, the next number is left, that is called complex number. So we denote it by C. So these are some famous notation. You should remember these things. Suppose x is belong to q, means x is belong to q means x is a rational number. X is any rational number. Suppose x is belong to r, so x means x is any real number. Real number means 1 2 3 4 5 or 2 upon 3 or under root 3, means all the rational and irrational numbers. Now we comes on a next topic, that is type of sets. सेट के प्रकार, सेट कितने प्रकार के होते हैं? सेट कई प्रकार के होते हैं जिनके बारे में आपको इस पूरे पेज में बताऊंगा. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, उसे हम कहते हैं एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट. ये नाम है इसका. इफ द सेट हैज नो एलिमेंट, सो इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट. सो इट इज डिनोटेड बाय फाई. उसे हम फाई से डिनोट करते हैं. दिस लेटर इज फाई, इसे हम फाई कहते हैं. मतलब अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो उसे हम या तो एम्प्टी मीन्स खाली, और वॉइड और नल सेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2. This is a completely phi, because x belongs to r, x belong कर रहा है रियल नंबर्स को, and x square equal to -2. It is not possible. It is not possible that square of any negative number is always positive. So it is not possible. And this form is called, this is SBF, set builder form. Yesterday I told you this is SBF, this is set builder form. If I give you another example, then suppose b equal to x belong to n such that 5x6. This, it means, what is the meaning of this?
इसका मतलब क्या हुआ, आपको कल भी मैंने इस लाइन का मतलब समझाने की कोशिश की थी, मैं यहाँ एक बार फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ देखिएगा एक बार 5x6, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब 5 इज लेस देन x मीन्स x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 6। दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे इसमें इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। n इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था, n मीन्स नेचुरल नंबर। इसके बीच में रैशनल नंबर्स तो आ सकते हैं, लेकिन जब x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि x बिलोंग टू n, यहाँ x बिलोंग्स टू r था। इस बात का बहुत महत्व है, इसलिए मैंने आपको पहले वो पेज समझा दिया है। नाउ नेक्स्ट इज सिंगलटन सेट। बहुत सिंपल सी बात है, यदि किसी सेट में कि केवल एक एलिमेंट हो तो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। मीन्स इफ द सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट, किसी सेट में केवल एक ही एलिमेंट है तो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ये सिंपल सा एक एग्जांपल है सिंगलटन सेट का। जैसे कि सपोज a इक्वल टू एग्जाम्पल a इक्वल टू ओनली 3, सिंगलटन, सिंगल एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। नाउ अगेन इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स अ सेट इन विच द एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड और काउंटेड। एक ऐसा सेट जिनमें जो एलिमेंट्स दिए हैं उस सेट के अंदर उन्हें हम गिन सकें कि इसमें 5 एलिमेंट हैं, कि इसमें 4 एलिमेंट हैं, कि इसमें 10 एलिमेंट हैं, जिसे हम काउंट कर सकें, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं आपको फाइनाइट सेट कर दे रहा हूँ एग्जांपल कि सपोज a इक्वल टू 1 2 3, so the elements are 1 2 3 can be counted, काउंटेबल। 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, फाइनाइट एलिमेंट है इसके एलिमेंट, तो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ठीक, वन थिंग ऑल्सो, 5 is also finite set. 5 is also finite set because 5 means there is no element. No element means it is generated by this in roster form. This is very important. It is generated by only by curly bracket and there is nothing in that. So there is 0 element. So it is also finite set. Okay? समझ में आ रहा है सभी को? अब बात करते हैं हम कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ लिस्टेड एलिमेंट ऑफ फाइनाइट सेट, उस फाइनाइट सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उन्हें हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम फाइनाइट सेट के गिन सकते हैं। ठीक, तो इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि a इक्वल टू सपोज A B C D E, ओके, तो सपोज B इक्वल टू 1 2 3 4 5, सो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो वी राइट n A इक्वल टू 5। कितने एलिमेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5, सपोज इसमें 5 भी हैं, तो वी राइट एन बी इक्वल टू 5। इसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। मीन्स कितने एलिमेंट्स हैं उस सेट के अंदर, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर दैट सेट कंसिस्ट, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हम कितनी गिनती है उनकी, उसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट हमने पढ़ा था, इनफाइनाइट सेट जस्ट अपोजिट होगा, आप समझ रहे होंगे। A set in which element cannot be counted, जिसे हम काउंट ना कर सकें। काउंट ना कर सकें मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन,
इन अ प्लेन आप जानते हैं, प्लेनिंग ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी। ऑल पॉइंट्स, एक प्लेन पर, एक सतह पर ऑल पॉइंट्स का सेट, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, कितने भी पॉइंट्स बना सकते हैं, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कभी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, इसका कोई कार्डिनल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट। ठीक, सो एक और एग्जाम्पल हम लें, सपोज करो, इसका वैसे तो आवश्यकता नहीं है, सपोज इस तरह से लें हम एग्जाम्पल, b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड डैश 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 डैश, दिस डैश मीन्स नेवर एंडेड, नॉन टर्मिनेटिंग। So this is the set of natural number, but this is not finite, this is infinite set, because we cannot count how many numbers, हम इनको गिन नहीं सकते कि कितने नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर की कोई एंडिंग नहीं है, 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से स्टार्ट करने के बाद इस गिनती को आप कहीं तक भी ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको इनफाइनाइट सेट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट समझने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि यदि दो सेटों के कार्डिनल नंबर सेम हो, अगर दो सेटों के, सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स, ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, उनके कार्डिनल नंबर मीन्स उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हों, अगर इसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए में, तो बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, यदि पी कोई सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं उसमें, तो क्यू में भी 4 हैं, तो हम उसे कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। मीन्स एन ए इक्वल टू एन बी, मीन्स यदि कार्डिनल नंबर सेम हैं तो हम उन्हें इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। मैं हिंदी भाषा का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपके समझ में आए, लेकिन आपको पढ़ना तो इंग्लिश में पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट। इक्विवेलेंट मीन नहीं, इक्वल सेट। इक्वल सेट तो दो सेट, कोई मान लो सेट हैं ए और बी, वो इक्वल तब कहलाते हैं यदि ए किसी ए सेट के सभी मेंबर्स बी में हों और बी सेट के सभी मेंबर्स ए में हों, तो वो दोनों सेट इक्वल सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरे पेन पर देखिएगा, सपोज ए इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने 1 7 9 11, एक सेट है सपोज, एंड आप फिर ध्यान से देखिएगा बी इक्वल टू, अगर मैंने लिखा है 7 1 11 9, ये बी सेट है, तो आप देख रहे हैं कि ए 1 ए में भी है, 1 बी में भी है, 7 ए में भी है, 7 बी में भी है, 9 ए में भी है, 9 बी में भी है, 11 इसमें भी है, 11 बी में भी है। मे बी ऑर्डर आर डिफरेंट, माना कि इनका क्रम निश्चित नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी। बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको, ठीक? एनी प्रॉब्लम? नाउ आफ्टर दिस, ये इक्विवेलेंट और इक्वल दो शब्द एक से लगते हैं, तो एक प्रश्न उठता है कि इनके बीच में कोई डिफरेंस होना चाहिए, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर बताने के लिए आप कह सकते हैं कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, but all equivalent set are not equal. Every equal set is equivalent set. अब हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा क्योंकि कार्डिनल नंबर बराबर होंगे। भाई कार्डिनल नंबर बराबर होंगे, कार्डिनल नंबर बराबर होंगे, लेकिन वो सेट इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कार्डिनल नंबर बराबर तो होंगे लेकिन अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। बात आपके समझ में, मैं समझता हूँ, ठीक से आ रही होगी। एग्जाम्पल आप चाहो तो मैं इसका एक दे सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट इज, दीज आर द टाइप ऑफ सेट। नेक्स्ट इज, नाउ अब हम शुरू करने जा रहे हैं सबसेट्स। सबसेट मीन्स सेट के छोटे हिस्से, सबसेट्स हिंदी में बता रहा हूँ आपको। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, माना कि ए और बी दो सेट्स हैं, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, और हर ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट भी हो, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ कॉल्ड
सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी का सबसेट है, और उसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। इट मीन ए इज बिलोंग टू ए एंड ऑल्सो ए इज बिलोंग टू बी। ए जो है कोई एलिमेंट है वो इस सेट में भी है और बी सेट में भी है। इस सबसेट की डेफिनेशन आपकी शायद में समझ क्लियर हुई होगी। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई दो सेट ए और बी हैं तो ए को हम बी का सबसेट तब कहेंगे जब ए के सारे एलिमेंट बी में हों। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई होगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इस चीज़ का। सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू, आप मेरे पेन की तरफ देखना, 1 2 5 3। सो वी कैन राइट दैट, हम लिख सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। आप देख लीजिए ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। 1 ए का एलिमेंट है, 1 बी में है, 2 बी में है, 3 बी में है। ए के सारे बी में हैं, 5 से फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो इस बी में हैं। सो वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। इस स्थिति में ए जो है वो बी का सबसेट है। ये बात मैंने आपको हिंदी में बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दी है। आप कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। अब इस सबसेट्स के बारे में कुछ छोटे अच्छे पॉइंट्स उठते हैं जिन्हें आपको बहुत गहनतापूर्वक समझना होगा, जो कि बहुत सरल हैं। आपको लगेगा कि टफ हैं, लेकिन सरल है। जैसे एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है। ये बात क्लियर है? आप थोड़ा सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, एम्प्टी सेट, मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। 5, जिसे हम 5 से डिनोट करते हैं, 5 से, एम्प्टी सेट 5 से, इसको कोई एलिमेंट नहीं है, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। वो हर सेट का सबसेट है। इसे भी आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल। और एक मेन इम्पोर्टेंट बात है जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, इस बात को बहुत ढंग से समझ लेना आप, कि अभी मैंने आपको सबसेट बनाना नहीं सिखाया है। कल नेक्स्ट टॉपिक में आपको सबसेट बनाना सिखाऊंगा। बट द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, किसी भी फाइनाइट सेट के, फाइनाइट सेट में जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सकते हों, उसके जो कितने सबसेट बन सकते हैं वो बन सकते हैं 2 की पावर n। और n क्या है? n यहाँ पर कार्डिनल नंबर है, मीन्स n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं किसी भी फाइनाइट सेट के। यदि आप चाहो तो मैं इसका आपको एग्जांपल दे के एक बार दिखा देता हूँ। सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4। तो ए कोई सेट है और अगर हमें इसके सबसेट बनाने हैं, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, तो इसमें कितने नंबर एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स हैं, मीन्स कार्डिनल नंबर 4 हैं। तो इसके जो सबसेट बनेंगे, मीन्स नंबर ऑफ सबसेट आर 2 to the power 4। इट मीन 2 into 2 into 2। ये सिंपल है, ये तो फालतू लिख रहा हूँ मैं आपको। इट इज 16। तो इस सबसेट के बारे में सिर्फ डिस्क्रिप्शन है ये। अभी इस सबसेट की सिर्फ ABCD है। सबसेट अभी आगे भी जाएगा, हाउ मैनी सबसेट, कितने सबसेट बनेंगे, किसके सबसेट कैसे बनाते हैं, जो हम कल नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। तो मैं समझता हूँ आपने अपनी एक्सरसाइज, तो मैं समझता हूँ आज जो भी आपको समझाया गया वो आपकी समझ में आया होगा। और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आपने पूरी की होगी। आपने कोई कमेंट नहीं भेजा, आप कमेंट भेज सकते हैं। और जिसको भी मैंने पढ़ाया है उसको आप एक बार रिवाइज कीजिए प्रॉपर तरीके से। हर चीज़ बहुत ही क्लियर तरीके से समझाई गई है। टाइप ऑफ सेट्स को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आप एक बार रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भेजिए एज अ कमेंट में। जो आप पूछना चाहते हैं
उसे ऐसे कमेंट भेजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, बिकॉज दिस इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू एंड मी ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच फॉर